सो पॉलिनोमियल्स, सो सबसे पहले तो ये समझें कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। सो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल है, अगर उस वेरिएबल का पावर एक होल नंबर है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, देन इट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। तो बेसिकली वो होल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है जो भी वेरिएबल है उसका पावर। सेकेंड, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, द पावर कैन नॉट बी नेगेटिव ऑफ एनी वेरिएबल। So in that case, that expression will be called a polynomial, right? Now, the highest power of the variable, okay, if px is a polynomial in x, the highest power of x in px is called the degree of the polynomial, right? So if px is the polynomial in variable x, the highest power of x in px is called the degree of the polynomial px. For example, if we take 4x plus 2, here the power of x is 1. This is the highest power. There is no other term which has x in it. So this is the highest power. So the degree of this polynomial will be equal to 1. Here in this polynomial, now this is a polynomial because the power here is again a whole number. So again in this polynomial we will find the highest power of this is will be known as the degree of the polynomial. So degree of the polynomial here is 2. In this case, the highest power is 3. So the degree of the polynomial is 3. In this case, the highest power is 6. So the degree of the polynomial is 6. Now expressions like x1 by x minus 1, root x plus 2, 1 by x square plus 2x plus 3. So in these cases, you will see that the power of x, when it comes to numerator, it will become negative. Similarly, here also, if it goes to numerator, it will be negative. And the power here of the variable x is a fraction basically. So in each of these cases, it is not a positive, it is not a whole number basically. So when the power of a variable is not a whole number, it is not a polynomial. So these are not considered to be polynomials. Now, a polynomial of degree 1 is called a linear polynomial. The general form of a linear polynomial will be ax plus b. So this is the general form of a linear polynomial px. Now, a polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial. The general form of a quadratic polynomial will be ax square plus bx plus c. So this is a general form of a quadratic polynomial. Now, similarly, so here it is written also, more generally, any quadratic polynomial in x is of the form ax square plus bx plus c. Now here a, b and c are real numbers and a should not be equal to 0. If a becomes equal to 0, there would be no terms of x square remaining. So if there is no term of x square, then it will not be a quadratic polynomial, it will become a linear polynomial. Similarly, a polynomial of degree 3, right, is called a cubic polynomial, right? Some examples of a cubic polynomial are, so these are the examples of cubic polynomial. And general form of a cubic polynomial is ax cubed plus bx square plus cx plus d. So this is the general form of cubic polynomial. So here a, b, c and d are real numbers and a should not be equal to 0. Otherwise the degree of the polynomial is not 3 and hence it is not a cubic polynomial. Now consider the polynomial. Let's say we take an example where the polynomial is equal to x square minus 3x minus 4. So we have a polynomial px is equal to x square minus 3x minus 4. Now putting the value x is equal to 2. So when you put the value of px equal to 2, p2 will be equal to 2 square minus 3 into 2 minus 4. So 4 minus 6 minus 4. So 4 minus 4, this gets cancelled. So this is equal to minus 6. So we say that the value of the polynomial px at x is equal to 2 is given as p of 2. And that is equal to minus 6. So if px is a polynomial in x,
If k is any real number, then value obtained by replacing x by k in px is called the value of px at x is equal to k. So value of px at x is equal to k becomes p of k. Okay, it is denoted by p of k. So if px is a polynomial in x and if k is any real number, then the value obtained by replacing x by k in px is called value of px at x is equal to k. Now, let's say we have another polynomial px equal to x square minus 3x minus 4. If we put the value of the variable x is equal to minus 1 here in this polynomial, we will get p of minus 1, which is equal to minus 1 ka whole square minus 3 into minus 1 minus of 4. So this is equal to 1 minus minus plus हो गया 1 plus 3 minus 4. तो ये क्या हो गया 4 minus 4 is equal to 0. तो that value of the variable at which the value of polynomial becomes 0 is called the zero of a polynomial. So a real number k is said to be 0 of a polynomial px if p of k is 0. तो x इज इक्वल टू k जीरो कब होगा जब p ऑफ k जीरो के बराबर हो जाता है, तब हम इस वैल्यू को, ये जो x का वैल्यू है k, इसको हम लोग जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कहते हैं. Now in general, if k is a zero of polynomial px equal to ax plus b, तो x की जगह we'll put k, so it will become ak plus b, that is equal to 0. The value of k is minus b by a. So minus b by a becomes 0 of the polynomial ax plus b. So the 0 of the polynomial ax plus b is minus of b by a, or which is equal to minus of constant term. इसमें constant term क्या है ax. तो हमारे पास एक polynomial है px is equal to a into x plus b. तो constant term means this b, and coefficient of x is a. So the polynomial px becomes equal to ax plus b. So polynomial px becomes equal to ax plus b, where this is negative of constant term by coefficient of x. Is it clear to everyone? Yes, sir. Now, geometrical meaning of the zeros of a polynomial. You know that a real number k is a zero of the polynomial px if p of k is equal to 0. ठीक है. So k is a zero of a polynomial जब उसका वैल्यू हम लोग डालेंगे, है ना, px polynomial पे, तो वो अगर वैल्यू 0 के बराबर आ जाता है, then we say that it is a zero of polynomial. Now जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल को अगर हम लोग को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स से वी हैव अ लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू ax प्लस b. वी नो दैट दिस लीनियर पॉलिनोमियल को जब हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज अ स्ट्रेट लाइन. Okay, so now this straight line, when it cuts whatever point it cuts the x axis, that value of the x becomes the zero of the polynomial. So here the zero you can see in y is equal to 2x plus 3. Let's say this is the straight line y is equal to 2x plus 3, or we can write fx is equal to 2x plus 3. So the value of y at which x at which y becomes 0. So y becomes 0 at the value of, इसको सॉल्व कर लेते हैं. So x is equal to minus 3 by 2. So 0 is equal to ये 2x plus 3 हो गया. So x is equal to minus 3 by 2.
क्लियर है बच्चों? Now, if you see this quadratic polynomial, ax square plus bx plus c, the quadratic polynomial is ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0. So, the graph of this is in the form of a parabola, and if a is greater than 0, the parabola mouth will be opening upward, and if a is less than 0, the parabola mouth will be opening downward. तो a greater than 0 पे है ना अपवर्ड और a less than 0 पे डाउनवर्ड. तो let's say in this question you can see the parabola is opening upward. तो यहाँ पे a जो होगा, यहाँ पे जो वैल्यू है इक्वेशन जो पॉलिनोमियल है y is equal to x square minus 3x minus 4. So the coefficient of x square here so here the coefficient here is 1, which is greater than, so coefficient of x square so coefficient of x square is equal to 1, which is greater than 0. So the parabola mouth will be opening upward, and now there can be 3 scenarios, right? So अगर एक parabola है, ये इसको 2 पॉइंट पे कट कर सकता है, या फिर बस एक पॉइंट पे टच कर सकता है, या फिर ये कहीं पे भी टच ना करे. सो इस केस में जितने पॉइंट पे ये टच करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा, उतने जीरोस होंगे. तो देयर आर 2 zeros here. Here it is touching only one point, so there will be 1 0 here, and here it is not touching the x-axis at all, so the answer here will be no zeros, right? So 2 zeros, 1 0, and no zeros. Similar is the scenario when the parabola mouth is opening downward. So here 2 zeros, 1 0, and no zeros. Is it clear, bachcho? Yes, sir. Now this is the example where we have to find out what is the number of zeros here in the polynomial. So as I said, जितने बारी ये x axis को cut करेगा, है ना, that will give you the number of zeros here. So because it cuts the x axis at only one point, number of zeros here is 1. Here it cuts the x axis at 2 points, so the number of zero here is 2. Here it cuts the x axis at 3 points, so number of zeros is 3. Cuts the x axis at only 1 point, 1 0, 1 0. Here it cuts it at 4 points, so number of zeros become 4. Clear, bachcho? Now the exercise here. So in this question, you can see the graph of this polynomial being parallel to x-axis. So it will never cut x-axis. So number of zeros here is, so number of zeros is equal to 0 here. Here it is cutting at one time, so number of zeros is 1. Here the graph is cutting it 3 times, number of 0 becomes 3. Here it cuts the x-axis at 2 points, number of 0 here is 2. Here it is cutting it at 3 points, 4 points in fact. So number of zeros here is 4. Here it is cutting, touching or cutting you can say 3 times, so number of zeros here will be 3. I hope it is clear to everyone. Yes, sir. Yes, sir. Now comes
if alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial, let's say the polynomial here is px is equal to ax square plus bx plus c, then you know that if alpha and beta are zeros means x minus alpha and x minus beta will be the factors of the polynomial. So we can write ax square plus bx plus c as k times x minus alpha into x minus beta, where k is some constant. Now, when you solve this, you will get k times x square minus alpha plus beta x plus alpha beta. Now, when you compare the coefficients, you will find a is equal to k, b is equal to minus k times alpha plus beta, and c is equal to k times alpha beta. So, if you have to find alpha plus beta, this will become minus of b by a, right? Alpha beta becomes c by a. So this is the formula basically, which gives you a relation between the zeros of a polynomial and the coefficients of the polynomial. So if we have a polynomial ax square plus bx plus c is equal to 0, sum of the zeros becomes minus b by a. Minus b by a as in negative of the coefficient of x by coefficient of x square. And alpha beta is c by a, that means the the constant term divided by coefficient of x square, that is the product alpha into beta, product of the two zeros. Now sum of zeros, so sum of zeros is equal to alpha plus beta, which is equal to minus b by a, that is negative of coefficient of x by coefficient of x square. Product of zeros is equal to alpha into beta, that is c by a, so that is constant term by coefficient of x square. Now if you see this example too, क्यूबिक पॉलिनोमियल हट गया है सिलेबस से, मतलब पहले भी नहीं था, बट अब तो साफ साफ ही इन्होंने लिखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही करना है हम लोगों को, उसके रिलेशंस, तो हम लोग बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स तक ही सीमित रहेंगे अपने पढ़ाई में, हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं करेंगे. नाउ फाइंड द जीरोस ऑफ quadratic polynomial x square plus 7x plus 10. So we have, let's say the polynomial px is given as x square plus 7x plus 10, and verify the relationship between the zeros and the coefficient. So you have to verify also. First you have to find the zeros. To find the zeros, you equate it to 0, and then we'll factorize it and solve it. So x square plus 7x plus 0, if you factorize by middle term split, it becomes x square plus 2x plus of 5x plus of 10 is 0. So if you take x as common, x plus 2 plus 5 as common, x plus 2, which is equal to 0. So this is equal to x plus 5 into x plus 2 is equal to 0. Or x is equal to minus 5, or x is equal to minus 2. Okay. So now we have these two. These are the two zeros. So alpha becomes equal to minus 5 and beta is equal to minus 2. Now the sum of zeros, is alpha plus beta minus 5 plus of minus 2, which is equal to minus 7. Okay. We have product of zeros is equal to alpha into beta, right, which is minus 5 into minus 2. Minus b by a if you write. So this is the polynomial.
So A is equal to 1, B is equal to 7, right? So minus B by A and C is equal to 10. So minus of 7 by 1, which is again minus 7, and C by A is equal to 10 by 1, which is 10. Okay. So we can see that sum of the zeros become equal to minus B by A. It is verified. Now since alpha plus beta is equal to minus 7, which is equal to minus B by A, this is verified. And alpha into beta is equal to plus 10, which is C by A. Again, it is verified. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3. तो जीरोस निकालने बोला है, तो सबसे आसान तरीका है इसको जीरो से इक्वेट कर दो और सॉल्व कर दो. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3. तो हमारा अल्फा इज इक्वल टू प्लस रूट 3 हो गया और बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3 हो गया. अल्फा बीटा निकल गया. अब हमें वेरीफाई भी करना है रिलेशन. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू रूट 3 प्लस माइनस रूट 3 विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. और माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट 0 और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. एंड सी बाय ए इज इक्वल टू, सी यहाँ पे माइनस 3 है, ए 1 है, विच इज इक्वल टू माइनस 3. और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू रूट 3 इंटू माइनस ऑफ रूट 3, विच इज अगेन इक्वल टू माइनस 3. ठीक है. सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो ये फिर से वेरीफाइड है. नो शिव्या, ये डिवीजन एल्गोरिथम का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. डिवीजन एल्गोरिथम सिलेबस से ही हट गया है. तो उससे वेरिफिकेशन हो या फिर सॉल्व करने का चीज हो, कुछ भी नहीं आएगा उसमें से. ओके सर. फोर्थ वाला है. आपने तो बेसिक भरा हुआ है ना शिव्या? नहीं सर, स्टैंडर्ड. अच्छा, चेंज कर लिया बाद में? शुरू में तो आप कह रहे थे बेसिक भरेंगे. सर स्कूल ने ही स्टैंडर्ड भर दिया था, मतलब जिन बच्चों का खुद ही कर दिया था, तो फिर. अच्छा, कितने लोगों ने बेसिक भरा हुआ है? प्लीज हैंड रेज करेंगे बेसिक, जिन्होंने फिल किया हुआ है बेसिक मैथ्स. कोई भी नहीं है बेसिक मैथ्स वाले? बहुत जबरदस्त. और कितने बच्चे हैं जो स्टैंडर्ड किए हुए हैं? स्टैंडर्ड वाले हैंड रेज कर दो. मनन और आर्शिया, आपका अभी तक आया नहीं है. मनन, आपने क्या ऑप्ट किया हुआ है, बेसिक या फिर स्टैंडर्ड?
सर एग्जाम्स तो अब मार्च में होंगे ना, फर्स्ट वीक से। तुमको बताया उन्होंने, एजुकेशन मिनिस्टर ने आके? नहीं सर, वो एक ऑफिशियल का आया था ना, उन्होंने कहा था कि एग्जाम तो मार्च में क्या होंगे। उस ऑफिशियल को तुम जानते हो? नहीं, वो न्यूज पे बता रहे थे तो मेरे को लगा कि मतलब फेक न्यूज बहुत होता है दुनिया में, जस्ट डोंट गेट इनटू ऑल दोस, लेट द ऑफिशियल स्टेटमेंट कम, ओके? ओके सर। सर कल vested एजुकेशन interest- मिनिस्टर की सर स्पीच हुई थी कल, हाँ, अभी पहले इसका तो इसका उसमें सर मैं कुछ नहीं इसका बोल रहा। इस बालक का डाउट पहले हमको क्लियर कर दो। तो बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। मान लो मैं एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट हूँ और मुझे 11th क्लास में बच्चे का एडमिशन लेना शुरू करना है, जैसे मैं फिट जी हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, तो मैं किसी भी ऑफिशियल को बोलूंगा कि तुम एक स्टेटमेंट ऐसा बोल दो कि फरवरी में ही एग्जाम होगा, मार्च में ही एग्जाम होगा, जिससे मेरे यहाँ एडमिशन होने लगे। तो उसको क्या हम स्टेटमेंट मान लेंगे किसी ऑफिशियल का? वो उनकी जॉब से निकाल देंगे ना उन्हें, अगर उन्होंने गलत बेवकूफ स्टेटमेंट हो दिया गया, तो। अरे बेवकूफ हो, उन्होंने थोड़ा ना डेट बताया, उन्होंने बोला वी आर कंसिडरिंग। तो पॉलिटिकल अच्छा, स्टेटमेंट है ना, पॉलिटिकल स्टेटमेंट मोदी जी जैसा कर रहे हैं। सब जो ओपन एंडेड आंसर्स होता है, इन ओपन एंडेड आंसर्स का कोई मतलब नहीं है ना? अब आते हैं कल के मीटिंग पे, जो एजुकेशन मिनिस्टर का मीटिंग हुआ था बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ। सो lot many questions were put in where student wanted to know about the dates, but the dates were not confirmed. उन्होंने उसका एग्जैक्ट रिप्लाई नहीं किया। दो चीज है अभी कंसिडरेशन में। पहला तो ये देखो, एक चीज तो फाइनल हो गया है कि बोर्ड एग्जाम्स होगा, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। दूसरा कि पेन एंड पेपर बेस्ड होगा, ये भी फाइनल हो गया है। अब आते हैं डेट पे, तो उन्होंने ये बोला है कि दो चीज कंसिडर कर रहे हैं। एक तो जब आपके जो एग्जामिनेशन के बीच में कि एक स्टार्ट उसी टाइम पे और एग्जामिनेशन के बीच में गैप्स वो इंक्रीज कर दें, जिससे बच्चों के ऊपर जो ये कोरोना का ये आया है, इफेक्ट आया है, उसके वजह से उनको जो पढ़ने का कम समय मिला है, वो गैप्स में उसको अच्छे से कवर हो जाएगा। दूसरा है कि शुरू ही लेट करें, तो अभी उसमें कुछ चर्चा चल रही है। अभी इन्होंने पेरेंट्स वेरेंट्स से लिया है, प्रिंसिपल्स से मीटिंग्स चल रही हैं इन लोगों की, वेरियस स्कूल्स के प्रिंसिपल से। तो एक बारी मेरे ख्याल से इट विल टेक अनदर 10-15 days फॉर देम टू डिसाइड ऑन द डेट्स, but there are high chances, as I said earlier also, that the examination may get postponed by at least a month, है ना? बहुत सारे रीजंस हैं उसके, ठीक है? तब तक देखो वैक्सीन वगैरह भी आ जाएगा और वैक्सीनेशंस के शॉट्स भी लग जाएंगे, तो वो लोग ऐसा कर देंगे कि भाई 10-12 के बच्चों को पहले वैक्सीन दे दो, समथिंग लाइक दैट। सो there is a possibility that the एग्जाम में गेट पोस्टपोन, बट स्टिल अभी कोई भी स्टेटमेंट तब तक नहीं आएगा जब तक कि वैक्सीन का एग्जैक्ट डेट नहीं आएगा। बी रेस्ट एश्योर्ड, एवरीथिंग लाइज ऑन दैट ओनली। तो बहुत गोल गोल सा आंसर मिलेगा अभी, तो उस पर ज्यादा अपना टाइम मत वेस्ट करो, पढ़ाई पे अपना ध्यान देते रहो। अच्छा, अब हम लोग आ रहे थे क्वेश्चन पे। So find a quadratic polynomial, the sum and the product of whose zeros are -3 and 2. So a quadratic polynomial is always given as px is equal to k times x square minus alpha plus beta x plus of alpha into beta, right? So that means any quadratic polynomial, if we know the sum and product of the zeros, then we can write x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. Now it totally depends on our choice what we want to take the value of k as. So generally हम लोग k का वैल्यू ऐसा लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी कफिशिएंट, जो सारे कफिशिएंट होल नंबर के फॉर्म में आ जाए। जनरली हम लोग k का वैल्यू वैसा ही लेते हैं। एक वैल्यू लेना है तुम कुछ भी ले सकते हो, बट आइडियली ऐसा लिया जाता है जिससे सारे कफिशिएंट्स जो हैं वो होल नंबर हो जाए, ठीक है?
So find a quadratic polynomial, the sum of zero. So ये जो क्वेश्चन पे आते हैं, k times sum of 0 is -3 and product of 0 is 2. So x square minus of -3x plus of 2. So this is equal to k times x square plus 3x plus of 2. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो अब अगर हम लोग कोई भी k का वैल्यू ले सकते हैं, तो k का वैल्यू यहाँ पे 1 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं. k का वैल्यू 1 ले लेंगे तो सबसे सुविधाजनक आसान एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. तो ये हमारा, दिस इज वन ऑफ द पॉलिनोमियल. देयर कैन बी मेनी न्यूमरस पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन. k का वैल्यू 2 ले लोगे तो दूसरा पॉलिनोमियल मिल जाएगा, 3 ले लोगे कोई और पॉलिनोमियल मिल जाएगा. तो देयर कैन बी n number of polynomials, infinite number of polynomials. Let's go to the next one. तो ये हमारा बेसिकली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2. ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस अगर हम लोग पिक करें, राइट, सो लेट अस पिक अप फ्यू क्वेश्चंस. एक तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. तो पहला वाला अगर हम लोग करें, है ना, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स पिक अप दिस क्वेश्चन. तो अब हमारे पास क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल. तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है ना, इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट कर ले. -2s प्लस ऑफ 1 इज 0. सो दिस विल बी 2s कॉमन ले लिया तो 2s minus 1, minus 1 कॉमन लिया 2s minus 1. So this is 2s minus 1 into 2s minus 1 is equal to 0. So s is equal to 1 by 2 or s is equal to 1 by 2. That means alpha is equal to 1 by 2 and beta is also equal to 1 by 2. Now sum of zeros, alpha plus beta is 1 by 2 plus 1 by 2, 1 हो गया. Minus b by a is minus of minus 4 by 4, that is 1. ये तो वेरीफाई हो गया. Alpha beta is equal to 1 by 2 into 1 by 2, which is equal to 1 by 4. ठीक है. C by A is equal to 1 by 4. ठीक है. तो यहाँ पे ये भी वेरीफाई हो गया, राइट. अब ये हम लोग फोर्थ वाला अगर देखें, 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0 कर लेंगे. 4u को कॉमन ले लेंगे, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0. u इज इक्वल टू 0 एंड u इज इक्वल टू -2. मतलब
अल्फा इज इक्वल टू 0 and beta is equal to -2. Alpha plus beta 0 minus 2 minus b by a minus 8 by 4 minus 2. Alpha into beta is equal to 0 into -2 which is equal to 0 and c by a is equal to c यहाँ पे 0 है 0 by 4 0 हो गया ये भी वेरीफाई हो गया Is it clear? Clear है बच्चों? Yes. Let's go to the next one now. इसी में second question जो है find the quadratic polynomial each with the given number as the sum and the product of its zeros. तो देखो कुछ क्वेश्चंस पहले करते हैं पहला वाला क्वेश्चन ही देखते हैं अगर सम ऑफ जीरोस दे रखा है 1/4 तो जो पॉलिनोमियल होगा हमने बोला कि k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस मतलब 1/4 माइनस 1 ये सम ऑफ द सॉरी 1/4 इंटू एक्स ये सम हो गया और प्रोडक्ट -1 है प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -1 राइट सो दिस इज k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1 अब मैंने बोला था कि सारे फैक्ट जो कफिशिएंट्स है ना उनको इंटीजर होना होगा ये फ्रैक्शन है 1/4 है तो k का वैल्यू 4 ले लो कन्वीनियंस के लिए k का वैल्यू 4 ले लेते हैं तो जो हमारा पॉलिनोमियल px है ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर 4/4 कैंसिल होके 4x/4 ये दोनों कैंसिल हो गया -4 विच इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया क्लियर है बच्चों Yes, sir. Let's go to the next question. So we'll do this second one also. So second one is the polynomial px is k times x square minus sum of zeros root 2x plus product of zeros 1/3. ठीक है k का वैल्यू 3 ले लेते हैं k का वैल्यू 3 लेने से हमारा पॉलिनोमियल जो हो जाएगा 3 अंदर लेके चले जाएंगे 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया थर्ड वाला अगर देखो सम ऑफ द जीरोस पॉलिनोमियल हम लोग लिखेंगे k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस रूट 5 ठीक है अब यहाँ पे कुछ नहीं k का वैल्यू 1 ले लेते हैं तो पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 क्लियर है बच्चों Done, sir. एनसीईआरटी में तो इतना ही है एक ये इस तरह का क्वेश्चन काफी पॉपुलर है बेसिकली और काफी सारे बुक्स में भी हम लोगों ने भी काफी प्रैक्टिस किया था जब हम लोगों ने किया था यहाँ पे दे रखा है कि एक पॉलिनोमियल है हमारे पास px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमें वैल्यूज निकालने हैं इन सभी के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और या ये भी है तो
इनको क्वेश्चंस को कैसे करना होता है कि पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में ये सब को लिख लेते हैं। मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आता कहाँ से है ये? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा को इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखना था तो ये इस फॉर्म में लिख लिया। मतलब हम लोग को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में लिखना है। अल्फा प्लस बीटा बिकॉज ये है तो देखो अल्फा प्लस बीटा विल ऑलवेज बी इक्वल टू माइनस बी बाय एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय यहाँ पुट कर लो माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर राइट माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा माइनस ऑफ 2c बाय तो ये क्या हो गया बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2c बाय एलसीएम ए स्क्वायर ले लिया तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ये हो गया वैल्यू। इज दिस क्लियर to everyone? Yes, sir. अब देखो ये वाला तो सिंपल है ऐसा ही है। इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे देखो क्रॉस मतलब बेसिकली हम लोगों ने एलसीएम ले लिया। अब अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया। इसका वैल्यू तुमको ऑलरेडी पता ही है तुमने यहाँ से निकाल रखा है। अल्फा बीटा का भी वैल्यू पता है c बाय तो तुम इसको लिख लो बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय c बाय ये कैंसिल होगा a बचेगा इसको बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ac हो जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये वाला भी सिंपल ही है ना। 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा को हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ अल्फा बीटा लिख के ऊपर बीटा प्लस अल्फा आ गया तो ये दोनों वैल्यू पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय अल्फा बीटा सी बाय ये कैंसिल हो जाएगा सो दिस विल बिकम माइनस बी बाय सी। आ गया समझ बच्चों? Yes, sir. सर एक बार ये सेकंड वाले के बाद जो उसका फर्स्ट स्टेप किया उसके बाद कौन सा स्टेप है ये जो नीचे आ रहा वाला? कौन से वाले में? सर सेकंड वाले में। सेकंड वाले में यहाँ पे हम लोगों ने अल्फा बीटा एलसीएम ले लिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऊपर आ गया न्यूमरेटर। ये क्लियर है ना ये वाला स्टेप? यस सर ये तो। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ निकाला था ना यस उसको सर। यूज कर लिए न्यूमरेटर में और अल्फा बीटा यहाँ पे जो निकाला उसको यूज कर लिया डिनोमिनेटर में। अच्छा ठीक है। और उनका वैल्यूज डाल दिया और उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है? ठीक है सर। जस आ गया समझ में आपको? यस सर बस 1 मिनट सर। हो गया लिख लिया बच्चों? Yes, sir. अब देखो 3 तो हम लोगों ने कर लिया। चौथे वाले पे आते हैं फोर्थ वाले पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इस पे
तो अब देखो इसको थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 3 अल्फा स्क्वायर बीटा 3 अल्फा बीटा स्क्वायर। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा कॉमन ले लो, अंदर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। सो मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये पूरी चीज को इधर LHS में लेके आ जाएंगे तो हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस ऑफ 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय ए होता है, माइनस बी बाय होल का ए का होल क्यूब माइनस ऑफ 3 अल्फा बीटा। 3 अल्फा बीटा इज माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, सॉरी 3 अल्फा बीटा इज सी बाय ए। अल्फा बीटा सी बाय ए और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। इसको अगर हम लोग पुट कर लें यहाँ पे, माइनस बी क्यूब बाय ए क्यूब माइनस माइनस प्लस हो गया 3bc बाय ए स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे ए क्यूब तो विच इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब प्लस 3abc डिवाइडेड बाय ए क्यूब। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. फिफ्थ वाला अगर हम लोग देखें, दिस फिफ्थ वन, अल्फा 4 प्लस बीटा 4। इसको पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डाल देंगे, माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर माइनस 2c बाय ए होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा c बाय ए का होल स्क्वायर। So this is b square by a square minus 2c by a minus 2c by a square. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। बाकी सब इसी तरीके के हैं, बाकी जो 6, 7, 8 है वो इसी तरीके के हैं, आप करेंगे तो आपसे बन जाएगा। अगली क्लास में है ना, टू मेक थिंग्स थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, वी विल हैव अ 30-minute क्विज, ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, इसी चैप्टर पे, पॉलिनोमियल्स पे। ठीक है, ओके सर। हाँ, इसको पहले स्टार्ट में करेंगे, देखेंगे कौन लाता है पूरे में पूरे। जो फुल ऑन फुल लाएगा अभी नहीं बताऊंगा। सर ऐसा नहीं होता सर। चलो, जो फुल ऑन फुल लाएगा उसको कुछ तो मिलेगा, अब क्या मिलेगा ये मैं बाद में बताऊंगा।
अरे पूरी क्लास को फुल ऑन फुल मिल जाएगा, मैं कुछ अभी लंबी चौड़ी बात कर दूं, कहाँ से लेके आऊंगा मैं? हैं? तुम्हारे सर गरीब है ना बेटा, समझा करो तुम। कुछ अच्छी चीज दूंगा, चलो तुम लोग जो लोग फुल ऑन फुल लाएंगे उसको विल ट्राई एंड विल गिव यू समथिंग। सर कहीं ऐसा सर तो नहीं बोर्ड्स में ना होगा कि हमें कोई एक नई बुक मिल जाएगी कहने के लिए? पागल है क्या? ये सब में तुम इतने दिन में मुझे नहीं जाने हो क्या? ये